today's topic is all about GMB, Google My Business. Okay, become king of local business using GMB. So let's start. Okay, just little bit of introduction. So this is Rohan. I run a digital marketing agency named Social People, and we also run a community, Social Media Avengers. As you all are aware, it's a WhatsApp community, and yeah, I'm also a promoter of an open agency. Open agency is a concept wherein anyone can start their own agency, and this particular presentation, this particular training is on a request of one such open agency. Its name is Team Awesome. So that's it. Okay, that's a small introduction. Let's come to the today's topic, which is GMV optimization. Okay, so who is the target audience? Target audience is the strategists, agency owners with local business clients, agency enthusiast, and open agency framework enthusiast. In case you have any questions, you can use the chat box, and I can see a lot of people are coming in. Okay, so you can use your chat box here. You can drop in your queries. I keep on coming to the screen, so I'll check, and I'll try to answer all those queries. Okay, meanwhile we'll start with the presentation. Okay, so this is going to be a sequence. कि सबसे पहले तो we'll understand Facebook versus Google, and then the typical GMB deliverables भी हम देखेंगे, and then we'll come to real life examples, and how GMB has helped our clients or helping our clients to achieve their marketing goals. तो वो भी सब हम details में जानेंगे, and then we'll have a question answer round as well. Okay, so this is a wisdom slide. Okay, so before we proceed further, we have to understand what is the difference between Google and Facebook advertisement. Okay, so how do we distinguish between both of them? तो Google में किस तरह के advertisement हमें करना चाहिए और Facebook में किस तरह से करना चाहिए. तो यहाँ पे मैं थोड़ा pause लूँगा. Okay, so just we'll clear some basics. तो Facebook is more of a you can say जहाँ पे you show some content, and then anyone who can relate to that content, they can engage in your advertisements. Okay, for example, if you are it is good for certain kind of businesses, and it is not good for certain kind of businesses. Okay, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि गूगल कौन से बिजनेसेस को के लिए सही है ना, ये आपको जानना है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर इनटू हेल्थ केयर सेगमेंट. ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ डॉक्टर. ओके, तो वहाँ पे Facebook might not be the right platform for you to advertise. Okay, but Google में you can use a lot of its feature and make sure कि ज़्यादा से ज़्यादा client और ज़्यादा से ज़्यादा patients आपके क्लिनिक में आए. ओके, तो बेसिकली ये डिफरेंस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हम लोग गूगल में क्यों एडवर्टाइज करते हैं और फेसबुक में क्यों करते हैं. ओके, दैट्स बीन सेड. ओके, अभी यहाँ पे we'll understand why exactly we need GMB. Okay, to show up in Google Map searches. For example, I have just let's make it little interactive. Okay, तो यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ, then you'll understand the importance of GMB. For example, let's say I search something on doctor near me. Okay, a simple query. Okay, so as you can see, okay, so basically I am from Vasai. Okay, if you guys know, it's a small place. Okay, near Mumbai. So as you can see, first queries, okay, जो आता है Google results. Okay, first Google results, they are like this particular section is Google My Business listings. Okay, तो यहाँ पे आपका रैंकिंग कैसे करवाना है, रैंक नंबर 1 कैसे करना है, वो हम लोग आज के ट्रेनिंग में जानेंगे. तो एज यू कैन सी, मैं सिर्फ यहाँ पे डाल रहा हूँ डॉक्टर नियर मी. एज यू कैन सी, सबसे पहला डॉक्टर कौन सा आ रहा है. ओके, तो ये वाला आ रहा है. देन वी हैव लाइक दिस वन, देन वी हैव दिस वन. तो यहाँ पे जो चीज़ आता है ना, ये डॉक्टर लोग के पास में बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे, क्योंकि दे आर लाइक फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, एंड देन फर्स्ट लिस्टिंग है. तो आज का टॉपिक यही होगा, आज का ट्रेनिंग इसके लिए होगा कि यहाँ पे किस तरह से आना है. ओके, सो वील कवर दैट. ठीक है, एंड देन द सेकेंड वन, ओके, अर्न ट्रस्ट फॉर योर फ्रॉम योर कस्टमर. क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अगर 5 स्टार मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे ही आते हैं. तो आई कैन सी, ओके, यहाँ पे 4.5 आ रहा है इसको. तो यहाँ पे ट्रस्ट स्कोर भी होता है कि अब रिव्यूज़ कितने हैं. तो आई कैन सिंपली गो हियर, आई कैन चेक कि यार ये पर्टिकुलर बंदे का किस तरह से लिस्टिंग है, क्या है, सही है, गलत है. फॉर एग्जांपल आई जस्ट चेक, ओके, कि हाँ 68 रिव्यूज़ है. तो मैं सबसे पहले तो रिव्यूज़ देखता हूँ
कि क्या बोल रहे हैं लोग, हाँ 5 स्टार है, हाँ 5 स्टार है, तो बोल रहे हैं हाँ विच इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन वसई वेस्ट, सर्विस विच आई रिसीव फ्रॉम डॉक्टर, ओके ही इज़ एक्सीलेंट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डिसीजन लेता हूँ कि हाँ यार ये सही लग रहा है, मुझे जाना है तो इसके पास ही जाना है। तो यहाँ पे लोग डिसीजन लेते हैं एंड देन दे लैंड इन योर क्लिनिक, ओके। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये चीज़ किस तरह से करना है। सो वही है, देन गिव कस्टमर मोर वेज टू रीच आउट टू यू, राइट, एंड देन लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस। तो इसके लिए बेसिकली जीएमबी यूजफुल है। जो भी बिजनेसेस को अपने कस्टमर से कनेक्ट होना है, जो सर्च बेस्ड क्वेरीज होते हैं उसको टारगेट करना है, देन विल बेसिकली यूज जीएमबी, ओके। एंड दीज आर द टिपिकल जीएमबी डिलीवरेबल्स। अगर कोई आपके पास में क्लाइंट है जीएमबी का, तो हमारे पास में कौन कौन से टाइप का काम करना पड़ता है उस क्लाइंट के लिए। सो वील हैव टू लाइक इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को हमें एक एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, ना कि एज अ क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसको बनाया है इसी तरीके से कि वो एजेंसीज के जो भी बंदे जो जीएमबी हैंडल करते हैं उनके लिए ईजी हो जाए, ओके। कि किस तरह से क्या क्या डिलीवरीज होते हैं, हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो जीएमबी में आपको क्या करना होता है, यू विल हैव टू ऑप्टिमाइज लिस्टिंग पैरामीटर्स ऑन रेगुलर बेसिस। फॉर एग्जांपल व्हाट आर दीज लिस्टिंग पैरामीटर्स, ओके। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि जीएमबी के डिलीवरेबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि ऑप्टिमाइज लिस्टिंग करना पड़ता है, तो लिस्टिंग पैरामीटर्स क्या होता है ना, वो पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं लिस्टिंग पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये क्वेरी हमने डाली ही थी, क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टिपिकल लिस्टिंग के लिए आपका प्रॉपरली यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, अभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। जैसे कि ये जो फील्ड्स है उसके, ओके, एड्रेस है या फिर ओपनिंग आवर्स है या फिर और भी इंफॉर्मेशन होगी नीचे दी गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक सेक्शन है जहाँ पे आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं, वो एक चीज़ होती है। देन देयर इज दिस वेब रिजल्ट्स है। तो ये सब अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे ऑप्टिमाइज करने होते हैं। अभी आप बोलोगे ऑप्टिमाइज मतलब ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पैरामीटर ले लेते हैं रिव्यूज़, ओके। तो आपको ये मेक श्योर करना होता है कि यार रिव्यूज़ यहाँ पे बढ़ते कैसे जाएँ, ओके। हमारे कॉम्पिटिटर है उनसे ज़्यादा रिव्यूज़ कैसे लेके आ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में टिप्स एंड ट्रिक्स में और डिटेल्स में जानेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं आपको जस्ट और थोड़ा बहुत ऊपर से देख लेते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो एक तो हो गया आपके जो रिव्यूज़ हो गए वो। देन यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो रेगुलरली बेसिस में आपको पोस्ट करने होते हैं, कुछ ना कुछ तो पिक्चर्स डालने होते हैं, ताकि गूगल को ऐसा लगेगा कि यार ये लोग थोड़ा एक्टिव है, ओके। सो दैट अगर आपका कॉम्पिटिटर ने 6 महीने पहले कुछ फोटोज डाले और आप रेगुलर बेसिस में डालते हो, तो वो भी पर्टिकुलर पैरामीटर गूगल चेक करता है कि हाँ यार ये लोग एक्टिव है, तो यार इनका रैंकिंग थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अगेन देयर आर सो मेनी अदर पैरामीटर्स, इट्स नॉट लाइक यार डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट कि यार सिर्फ हम लोग फोटोज रोज रोज डालेंगे तो हमारा ऑप्टिमाइज होगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग जानेंगे। एंड देन दूसरी क्या चीज़ें होती है, दूसरी ये होती है कि आप कहाँ कहाँ पे आपका बिजनेस को लिस्ट किए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने ये पर्टिकुलर क्लिनिक ने अलग अलग, जैसे जस्ट डायल पे अपने लिस्टिंग की है, गूगल मैप्स पे कुछ डाला है, देन एक नीरोग लाइफ एक ब्लॉग है, वहाँ पे कुछ उन्होंने अपनी लिस्टिंग की है। यहाँ पे डॉक्टर्स यूनिवर्सिटी, यानी उन्होंने बैकलिंक्स बेसिकली क्रिएट किया अलग अलग वेबसाइट में जाके। तो ये सब पैरामीटर्स होते हैं कि जो एक टिपिकल लिस्टिंग को एक रैंक करती है। तो आपको ये सब ये सब पैरामीटर्स को आपको ऑप्टिमाइज करने होता है। देन स्टडी योर कॉम्पिटिटर्स एंड रैंक हायर देन देम। तो फॉर एग्जांपल अभी सपोज जस्ट ये पर्टिकुलर डॉक्टर का अगर एग्जांपल लेंगे, जस्ट कंसिडर, ओके, हमारा ये क्लिनिक है डॉक्टर रेखाज स्किन एंड स्लिम सेंटर। तो हमें क्या देखना पड़ता है कि यार हमारे साथ में और कितने सारे लोग हैं, ओके, हमारे जैसे, तो वो लोग क्या क्या चीज़ कर रहे हैं हमारे ऊपर, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, डॉक्टर रेखा। तो यहाँ पे उनके कॉम्पिटिटर, मेन कॉम्पिटिटर तो ये 2 होंगे क्योंकि उनका लिस्टिंग इसके ऊपर है। तो डॉक्टर रेखा क्लिनिक को क्या करना होता है, देखना होता है कि यार ये दोनों ऐसी क्या चीज़ें कर रहे हैं जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा नंबर उसके नीचे आ रहा है, ओके। तो वो मैं कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं वहाँ पे बीट कर सकूँ, रैंकिंग मेरा अच्छा कर सकूँ, तो ये चीज़ होता है। एंड देन पोस्टिंग ऑन रेगुलर इंटरवल, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अगर आप रेगुलर इंटरवल पे अपने पोस्टिंग नहीं करते या फिर रिव्यूज़ नहीं बढ़ रहे या फिर और भी चीज़ें नहीं कर रहे हो ना, देन आपका रैंक नीचे जाएगा। तो इट्स नॉट लाइक कि आप, मेरा भी फर्स्ट रैंक पे दिख रहा है तो हमेशा वो फर्स्ट रैंक पे होगा। अगर आपके कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा कर रहे हैं तो वहाँ पे वो भी रैंक हायर कर सकते हैं। देन मैनेज एंड रिस्पॉन्ड टू कस्टमर रिव्यूज़, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर ने वहाँ पे कुछ रिव्यूज़ दिया है, देन यू विल हैव टू लाइक वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करना है, ओके, वहाँ पे रिप्लाई करना है कि हाँ यार अगर कोई पॉजिटिव रिव्यू दिया है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है।
अगर आपको कोई निगेटिव रिव्यूज़ दिया है तो वो निगेटिव रिव्यू क्यों दिया है उसको आपको उस तरह से एड्रेस करना है, उसके साथ में बात करनी है। अगर हो सके तो उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके उसको ये रिक्वेस्ट करना होता है कि यार आप एक निगेटिव रिव्यूज़ निकाल दो। फॉर क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इनफैक्ट हम लोग अमेज़न से भी जब भी कुछ शॉपिंग करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो ये सोशल प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। ज़्यादा करके लोग निगेटिव में क्या बोला है ना वो देखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर है तो उसके लिए तो देखेंगे यार क्या, क्योंकि हम लोग का तो ऐसा हो गया क्या पता क्या कर लेगा ये डॉक्टर हमारे साथ में। ओके, तो सबसे पहले तो निगेटिव रिव्यूज़ देख लेते हैं। तो ये देखना होता है कि यार निगेटिव रिव्यूज़ को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें, जो भी प्रॉब्लम्स है तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो ये चीज़ आपको कंटिन्यूस बेसिस पे करनी होती है। देन जैसे मैंने बोला लिंक बिल्डिंग, अलग अलग वेबसाइट में आपके क्लाइंट के बारे में, आपके क्लाइंट के वेबसाइट को लिस्ट करना होता है, जिसको बैकलिंकिंग बोलते हैं एसईओ के टर्म में। बट वही है कि वो भी एक एक्टिविटी होती है। देन कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ दिया हो तो शायद से इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। हाँ, यहाँ पे लिखा है देखो। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन लिख के रखा है कि यार ये क्या है। उन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन डाल दिया कि स्किन एंड स्लिम सेंटर करके उन्होंने दिखा है कि हम लोग वो है। तो ये जो कीवर्ड्स जो यूज़ किया है ना, तो वो आपको इस तरह से यूज़ करने होते हैं कि जो कि एक सर्च से मैच करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च कर रहा हूँ डॉक्टर्स नियर मी, ओके, ज़्यादा करके सर्च करिए डॉक्टर नियर मी आ रहे हैं, या फिर स्किन क्लिनिक इन वसई, या फिर उस तरह का मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे अगर इन्होंने वो पर्टिकुलर कीवर्ड अपने डिस्क्रिप्शन में डाले होते ना तो उनका रैंक होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता था। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ इस तरह से लिखा रहता कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डॉक्टर्स इन वसई, और टू बी वेरी स्पेसिफिक स्किन स्पेशलिस्ट इन वसई, देन दिस इज़ द राइट प्लेस टू बी इन, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। है तो ये कंटेंट राइटर को उतना सोचना पड़ता है, उसके हिसाब से सर्च क्वेरीज के हिसाब से वो डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखना होता है ताकि उसका रैंकिंग थोड़ा अच्छा हो जाए। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अभी तक कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स है, यू कैन सिंपली आस्क इन चैट बॉक्स। ओके, एंड देन एक बार कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन और वो सब ये सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टिपिकल जीएमबी डीलर है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। एंड देन अगेन फाइनली आपको रिपोर्ट देना होता है, और रिपोर्टिंग हम लोग इसलिए मेंटेन रखते हैं कि आपके पास में एक ट्रैक होता है कि पिछले साल में मेरे क्या नंबर्स थे, ओके, कंपेयर टू व्हाट नंबर्स। ओके, लेट मी स्टार्ट दिस पर्टिकुलर होल थिंग। तो वो टाइम पे क्या नंबर्स थे और आज क्या नंबर्स है, तो ये आपको प्रॉपरली मेंटेन रखना होता है। क्योंकि देखो आज गूगल देता रहेगा वहाँ पे कि चलो लास्ट 30 डेज़ का आपको मिल जाएगा, मे बी लास्ट 60 डेज़ का मिल जाएगा, बट हो सकता है कि आपको लास्ट 1 ईयर का कल से मिलना बंद हो जाए, या फिर को गूगल में कुछ चीज़ें कर सकते। तो ये रिपोर्ट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बेसिस पे आप आपकी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। तो ये रिपोर्ट आपको मेंटेन करना होता है। तो एनीवे, ओके, तो ये डिलीवरेबल्स तो क्लियर हो गए, राइट। सो विल मूव फर्दर। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा इंटरेक्शन है। ओके, अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना ही है। ओके, सो नॉट ऑल बिजनेसेस नीड जीएमबी। ओके, तो कैन यू आइडेंटिफाई सच एनी बिजनेसेस की जिनके लिए जीएमबी एप्लीकेबल नहीं होगा, और ऐसे बिजनेस भी आप आइडेंटिफाई करो कि जिनके लिए जीएमबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इनफैक्ट जो सोशल मीडिया करते हैं ना हम लोग, उससे भी ज़्यादा जीएमबी इंपॉर्टेंट है। आप सोशल मीडिया नहीं भी करोगे ना तो चलेगा, बट यार जीएमबी करो उनके लिए। तो ऐसे भी बिजनेसेस है। तो हम लोग यहाँ पे मैं थोड़ा पॉज देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ऐसे बिजनेस बताओ मुझे कि जिनको जीएमबी का कुछ भी फायदा नहीं है। जस्ट पुट इट देयर। आई जस्ट कुछ 2-3 एंट्री भी आ जाएंगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यार यू गाइज आर लिसनिंग। लोकेशन बेस्ड टॉप शॉप्स मस्ट हैव जीएमबी। ओके, ऑनलाइन कोचिंग, अभी देखो अभी ये भी आपको बताना है कि जिनको जीएमबी यूजफुल नहीं है ऐसे फर्स्ट ऐसे बिजनेस का पहले हम लोग लेते हैं, फिर बाद में जिनके लिए मस्ट है उनको लेंगे। तो आपने बोला है कि ओके, ऑनलाइन कोचिंग डू नॉट रिक्वायर जीएमबी। हाँ, सही कहा। ऑनलाइन कोचिंग जो है, ऑनलाइन जो भी बिजनेसेस है उनके लिए जीएमबी नहीं, क्योंकि जीएमबी बना ही इसलिए कि लोकल बिजनेसेस के लिए बना है। तो ठीक है, वो है। थोड़ा हिंट देता हूँ कुछ। ओके, बिग नोन ब्रांड्स, हाँ राइट, बिग नोन ब्रांड्स के लिए भी, बट बिग नोन ब्रांड्स के लिए भी ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम सर्चिंग समथिंग कॉल्ड डी मार्ट, ओके, तो मे बी डी मार्ट का यहाँ पे मुझे पता नहीं कहाँ पे है डी मार्ट, तो मैं वहाँ पे मैप में सर्च करता हूँ और वहाँ पे जाता हूँ गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के। तो इट डिपेंड्स। ओके, ऑनलाइन ई कॉमर्स शॉप्स के लिए नहीं लगेगा।
राइट। ई कॉमर्स शॉप्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका जीएमबी होना चाहिए, राइट। आपको क्या लगता है, फ्रूट सेलर्स उनको लगेगा जीएमबी का? प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक लॉयर्स, अरे लॉयर्स को तो लगेगा ना जीएमबी। सुनील जी, लॉयर्स नियर में डालूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको बता दूँ कि लॉयर्स को क्यों लगेगा। अगर कल को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, ओके, और मुझे पता नहीं कि लॉयर कौन है मेरे, क्योंकि नॉर्मली ये सब चीज़ें पता नहीं होती हमें, तो मैं नॉर्मली ऐसे ही करूँगा ना, लॉयर्स नियर मी। तो लॉयर्स नियर मी करेंगे तो आ गया लॉयर्स नियर मी। सबसे पहले तो मैं ये इसके पास जाऊँगा, और लोगों ने तो ऐड भी लगा के रखे हैं, एडवोकेट शशि चतुर्वेदी, ये तो बहुत अच्छे लॉयर लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐड भी लगा के दी है। सबसे पहले तो वही आएगा, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, या फिर जहाँ जहाँ पे उन्होंने लोकेशन टारगेट किया होगा, सबसे पहले लोग तो इसके पास जाते रहेंगे, फ़ोन करते रहेंगे, भाई मेरे को वेबसाइट देखेगा। वेबसाइट भी बनाया उन्होंने, अच्छा किया काम। ये देखो वेबसाइट भी बना के रखा है, ओके। ये सब इन्फॉर्मेशन सब चीज़ दे के रखा है, ये गूगल का फ्री वाला वेबसाइट बना के रखा है, ओके। अगर मुझे कुछ रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, तो ये फ्री कंसल्टेशन भी दे रहे हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं, तो लॉयर्स को तो लगती है यार, करेक्ट। बट इफ़ वी, ओके, अगर फ्रूट सेलर्स कार्ट पे सेल करते हैं तो नहीं चाहिए। इफ़ दे हैव अ शॉप एंड वांट टू बी नोन इन देयर टाउन दे मस्ट हैव। सी, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक ये सब्जेक्टिव चीज़ है, आपको ये भी देखना होता है कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लॉयर्स की सर्विसेज चाहिए ना, तो मुझे पता है कि मैं गूगल में जाके लॉयर्स नियर में करूँगा, बट क्या यूजुअली, क्या अगर नॉर्मल जो जनता है, ओके, क्या वो यूजुअली गूगल में जाके फ्रूट सेलर्स को ढूंढती है या फिर वेजिटेबल सेलर्स को ढूंढती है गूगल में? नहीं होता। उनको पता है कि ये सब चीज़ें तो हमारे यहाँ पे भाजी वाला है, वो भाजी मंडी में होते ही हैं वहाँ पे। तो देर आर सम बिजनेसेस जिनके लिए उतने सर्च नहीं होते, ओके। तो जहाँ पे सर्च भी होता है और वो लोकल भी है, ये दोनों पैरामीटर को मीट करता है ना जो बिजनेस, तो उनके लिए जीएमबी बहुत ज़रूरी है। या आई विल ग्रोसरी सोर्स कर से, ओके, बट वेजिटेबल के लिए नहीं करते नॉर्मली लोग, फ्रूट्स के लिए नहीं करते, ग्रोसरीज के लिए कर सकते हैं, राइट। ठीक है, सो ये सब समझ में आ गया। देन अभी हम लोग ऐसे बिजनेसेस को देखेंगे जिनके लिए जीएमबी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। यानी जीएमबी से उनका क्या बोलते हैं ना, बिजनेस ज़्यादा ग्रो होता है। इनफैक्ट सोशल मीडिया उनके लिए नहीं भी किया ना तब चलेगा, बट जीएमबी करना चाहिए। तो ऐसे कौन से बिजनेसेस हो सकते हैं? ओके, बेकरीज बोल दिया आपने, रेस्टोरेंट्स हो गया, ओके, होटल्स हो गया, देन डॉक्टर्स हो गए, ऑर्थोपेडिक सर्जन बोल दो, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, या फिर जो जो कि एकदम नॉर्मल डॉक्टर्स भी हो गए, ओके। बट हाँ, लोग नॉर्मली ये सब देखते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन नियर मी, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब, हाँ, पेट्रोल पंप्स, तो ये सब चीज़ें हैं ना, इनके लिए तो जीएमबी की बहुत इंटीरियर डिज़ाइनर्स डालते हैं लोग, तो ये सब चीज़ों के लिए तो जीएमबी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सब चीज़ें के लिए तो जीएमबी लगेगा ही। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया ना, यहाँ तक अभी चीज़ें आपको समझ में आ गया, देन यू विल गेट अ राइट डायरेक्शन। हाँ यार, क्यों चाहिए ये, सच में यार, अभी ये अंडरस्टैंड, सच में ये चीज़ का बहुत ज़रूरी है। जिम है, ओके, फिटनेस सेंटर है, लोग ढूंढते हैं वो। देन टॉप फैक्टर्स अफेक्टिंग जीएमबी रैंकिंग। अभी ऐसे कौन सा फैक्टर्स है जो कि जीएमबी रैंकिंग को अफेक्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो कॉम्पिटिटर, ओके, कितने कॉम्पिटिटर है आपके लोकेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितने रिव्यूज़ है आपके लिस्टिंग पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन आपका डिस्क्रिप्शन किस तरह से बनाया है, वो इंपॉर्टेंट है। आप क्या सर्विस दे रहे हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको बोला वेब रिजल्ट्स, जो कि आप कहाँ कहाँ पे आपके बिजनेस को लिस्ट करते हो, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये तो लॉयर है, उसने अपने आप को कहाँ कहाँ पे लिस्ट किया है। जस्ट डायल पे तो नॉर्मली लोग होते ही हैं, बट एनीवे, ओके। जैसे कि आप देख रहे हो कि इन्होंने जस्ट डायल पे भी किया है, और यहाँ पे कुछ दूसरा है, लीगल लॉ करके वेबसाइट है। तो अपने अपने नीश के हिसाब से उन्होंने अपने अपने वेबसाइट चुनने होते हैं और वहाँ पे खुद को लिस्ट करना है। तो ये वेबसाइट उनका खुद का नहीं है, बट सॉरी, ये मे बी ये वेबसाइट उनका खुद का नहीं है, बट वहाँ पे उन्होंने लिस्टिंग किया है। फॉर एग्जांपल प्लेस फाइंडर करके है, देखो प्लेस फाइंडर में उन्होंने अपना खुद का लिस्टिंग किया। तो ये सब चीज़ें है ना, आपको भी करने होते हैं अपने अपने क्लाइंट के लिए। तो ये वेब रिजल्ट्स में ये सब चीज़ें आएंगे। सर्विसेज यानी कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, तो जीएमबी में लॉगिन करने के बाद में आपको प्रॉपर जो भी आप सर्विसेज देते हो ना, वो सब लिस्ट करनी होती है, राइट। तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये जो 5 पैरामीटर्स है या फिर 5 फैक्टर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक पर्टिकुलर लिस्टिंग को रैंक करने में, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा हम लोग है ना प्रैक्टिकल में आपको एग्जांपल देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से
इम्पैक्ट करता है GMB एक बिजनेस को। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आए अब तक? ओके, नो क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ GMB इनसाइट टेकन फ्रॉम वन ऑफ द क्लाइंट जो हम लोग मैनेज करते हैं। वो है अंधेरी में एक जिम है, ओके उनका ये मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 9000 से ज़्यादा उनको व्यूज़ आ रहे हैं, ओके दिस पर्टिकुलर थिंग हियर, ओके। तो कितने सारे लोग सर्च देख रहे हैं उनकी लिस्टिंग, ओके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कुछ डालता हूँ, अभी मैं तो अंधेरी में हूँ नहीं, मैं तो हूँ वसई में, तो मुझे वसई के दिख जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि कितने लोग व्यू करते रहेंगे उसमें। जिम नियर में अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे, ओके सो एज यू कैन सी यहाँ पे सुनील जिम का नंबर 1 पे दिख रहा है, उसका रिव्यूज़ भी ज़्यादा है। तो जैसे मैंने बताया था, मे बी रिव्यूज़ की वजह से वो नंबर 1 पे आया होगा। तो यहाँ पे कितने सारे लोगों ने जिम नियर में या फिर उसके रिलेटेड कीवर्ड्स डाले होंगे और यहाँ पे मेरा लिस्टिंग देखा होगा, ओके। तो ये सब पैरामीटर्स है ना, यहाँ पे आपको समझ में आते हैं, ओके व्यूज़, सर्चेस और एक्टिविटीज़ में, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्यूज़ इनको कितने आए हैं, 9000 के ऊपर है। सर्चेस कितने हुए हैं, 7000 के ऊपर है। और एक्टिविटीज़ कितने की है, 13000 के ऊपर। तो इसके ऊपर लोग डिटेल में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़ होता है। और ये लास्ट 28 डेज का ही डेटा है, ओके ज़्यादा भी नहीं है। तो इस व्यूज़ में अगर आप देखोगे ना, जब भी आप GMB में लॉगिन करोगे तो सबसे पहले तो आपको ये पर्टिकुलर डैशबोर्ड दिखेगा कि व्यूज़ कितने हैं, सर्चेस कितने हैं, एक्टिविटी कितने हैं। तो यहाँ पे व्यूज़ है ना, 2 चीज़ में डिवाइड होता है कि सर्च से आपको कितने व्यूज़ आए हैं और मैप से कितने व्यूज़ आए। सर्च इन द सेंस गूगल सर्च, ओके। यहाँ पे अगर मैं चीज़ ये कर रहा हूँ जिम नियर में, तो ये गूगल सर्च का है। अगर मैं गूगल मैप ओपन करता हूँ और वहाँ से अगर मैं कुछ व्यू कर रहा हूँ, ओके मेरे बिजनेसेस को, तो वो कितने हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सर्च से 3000 लोगों ने व्यू किया है और मैप से 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने व्यू किया है। ज़्यादा लोग मैप से एक जिम को सर्च करते हैं। तो ये सब चीज़ें ना आपको एज अ स्ट्रैटेजिस्ट आपको ये सब कंसिडरेशन में लेनी होती है, तो आपको सही स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो। नेक्स्ट इनसाइट है सर्चेस, ओके। तो यहाँ पे सर्चेस में जो भी लोग सर्च कर रहे हैं ना, ओके गूगल सर्च कर रहे हैं, तो उसमें यूजुअली कितने डायरेक्ट सर्च कर रहे हैं और कितना डिस्कवरी में आ रहे हैं। डायरेक्ट सर्च यानी क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि 7000 सर्चेस हो रहे हैं। डायरेक्ट सर्च यानी उनको आपके बिजनेस के बारे में पता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, मुझे पता है सुनील जिम, ओके तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ सुनील जिम, तो यहाँ पे मुझे पता है सुनील जिम, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ब्रांड का नाम लिख रहा हूँ ना, तो वो डायरेक्ट इसमें आ जाता है। एक मिनट, कोई तो आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली ब्रांड्स का नाम से सर्च कर रहा हूँ, तो वो डायरेक्ट रिजल्ट्स में आएंगे, ओके। जैसे आप देखते हो कि वो ब्रांड पहले से ही पॉपुलर है, इसीलिए लोगों ने लास्ट 1 महीने में कुछ कम से कम 2000 लोग, 1500 लोगों ने उसको सर्च किया है, ओके। तो वो जिम का नाम डाला है, मे बी उनको ये देखना होता रहेगा कि यार आज जिम चालू है, या फिर मे बी उनको डायरेक्शन देखना होगा या और कुछ करना होगा, तो इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली उसका नाम लिख दिया और वो सर्च किया। और यहाँ पे डिस्कवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है ना, पीपल हु फाइंड योर बिजनेस प्रोफाइल सर्चिंग फॉर अ कैटेगरी प्रोडक्ट और सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मुझे सुनील जिम के बारे में पता नहीं है, बट मुझे पता है कि यार ये सर्विस क्या होता है, जिम दे रहा है ना, तो मैं सुनील जिम में टाइप करूंगा, मैं लिखूंगा जिम नियर मी, ओके। यानी इन्होंने आपके बिजनेस की सर्विसेज रिलेटेड एक सर्च किया था, उनको आपके बिजनेस के बारे में पता भी नहीं है, ओके। और फिर वो आपके बिजनेस के बारे में उन्होंने जान लिया, ओके। तो ये जो चीज़ होता है ना, ये आपको देखना होता है कि डिस्कवरी में हमारा हर महीने में हमारा ग्रोथ होना चाहिए। यानी डिस्कवरी में ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब आप सच में कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें कर रहे हो आपके क्लाइंट के लिए, जिससे उनका बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कम से कम 5000 से भी ज़्यादा लोगों ने डिस्कवरी में सर्च किया था और वहाँ पे हमारा ब्रांड उनको दिखा। सो आप यू कैन इमेजिन, ओके, कि इससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट गिरा होगा वो ब्रांड को। सोशल मीडिया में आप डाल रहे हो ना, लोग वहाँ पे सिर्फ लाइक देंगे, कमेंट देंगे, बट यहाँ पे बिजनेस होता है। उनको सच में उनको जिम करने का ज़रूरत है। मे बी उनके घर में मे बी उनके मम्मी ने बुला रहेगा, क्या पड़े रहता है, मोटा हो गया तू जिम जा, या फिर उसकी वाइफ ने बोला होगा यार तेरा आउट ऑफ शेप है तू जा। तो वहाँ पे वो लोग मोटिवेटेड होते हैं कि मुझे जाना ही है, तभी जाके वो गूगल में जाके सर्च करेंगे, तभी जाके उनका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। ना कि यार आपने फेसबुक में ऐड बता दिया, उनको ज़रूरत भी नहीं रहेगा उस चीज़ का, ओके। दे विल बी लाइक हाँ अच्छा लग रहा है, लाइक कर देंगे, मे बी आपका लीड फॉर्म सबमिट कर देंगे, बट दे विल नेवर टर्न अप। बट यहाँ से जो लोग आते हैं ना, वो यूजुअली कन्वर्ट हो ही जाता है। तो यहाँ इसलिए आपको GMB बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट इन सम बिजनेसेस वो आपके सोशल मीडिया से भी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और ये लास्ट 28 डेज का ही डेटा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने सारे लोग वहाँ पे आते होंगे, ओके, सिर्फ ये पर्टिकुलर चीज़ की वजह से।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटीज। ओके, लोग क्या क्या चीज कर रहे हैं, एक्टिविटीज कितने की है, तो 13,000 एक्टिविटीज हुई हैं ये पर्टिकुलर लिस्टिंग में। और वो कौन कौन सी इससे हुई है, तो यहाँ पे इसको कॉल्स देखो कितने आए, 167 कॉल्स आए। ओके, एंड इट इज लाइक ये बहुत बड़ा नंबर होता है, 167 कॉल्स आपको बिना पैसे खर्च किए मिल रहे हैं। ओके, यही चीज अगर आप इसमें जाते हो ना, एड्स रन करते हो ना, वहां पे आपको पर लीड का कॉस्ट भी होता है, जो कि मे बी 50 रुपया हो सकता है, मे बी 100 रुपया हो सकता है, बट वो सब चीजें आपकी यहाँ पे बच रही है। ओके, इतने ज्यादा कॉल्स आए, लाइक दे आर लाइक, अरे हेलो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपके जिम के बारे में मैंने देखा, फोटो वीटो अच्छे लगे, तो कभी चालू होता है, मुझे आना है वहाँ पे, देखना है। तो ये सब चीज़ें हो रही है वहाँ पे। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें। देन फोटो व्यूज़, कितने सारे लोगों ने ये फोटो व्यूज किए, जो हम लोग वो पर्टिकुलर लिस्टिंग में डालेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फोटो अपलोड करते हैं, तो 12,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपने फोटो व्यू किया। क्योंकि लोग देखते हैं कोई भी बिजनेस में या फिर कोई भी चीज़ लेने से पहले लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि सच में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, यही वही चीज़ें जो मैं ढूंढ रहा था वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, फोटो व्यूज़ देख रहे हैं, इसके मतलब वो इसके वजह से, ये फोटो डालने की वजह से मे बी वो कन्वर्जन हो रहा है, कॉल्स आ रहे हैं या फिर और चीज़ें हो रही है, मे बी वो लोग रिव्यूज़ भी देखते होंगे, बट रिव्यूज़ का हमारे पास में डेटा नहीं होता, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। फिर डायरेक्शन रिक्वेस्ट, यानी कितने सारे लोगों ने डायरेक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया कि यार ये कहाँ पे है एग्जैक्टली, वो सर्च तो कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैंने देख तो लिया कि हाँ सुनील जिम दिख रहा है, बट एक्चुअली डायरेक्शन में जाता हूँ ना, तो क्या होता है, आपका गूगल मैप ओपन हो जाता है, एग्जैक्टली है कहाँ पे, मैं जहाँ पे रहता हूँ, अच्छा यहाँ से मुझे यहाँ पे ऐसा जाना होगा, ऐसा ऐसा करके, हाँ यहाँ पे मुझे पहुँचना होगा। ओके, यहाँ पे है सुनील जिम, कितना टाइम लगेगा, 11 मिनट लगेगा। ओके ठीक है, चलो। तो ये सब चीज़ें ना आपको एनालाइज करना होता है कि इतने सारे लोग डायरेक्शन कर रहे हैं, कितने सारे लोग कॉल्स कर रहे हैं, और ये सब डेटा आपको क्लाइंट को बताना होता है कि देखो बाबा, हमारे एफर्ट के वजह से आपको ये सब चीज़ें हो रहा है। देन ही विल बी लाइक, हाँ यार इट इज़ नॉट जस्ट रैंडम कॉल्स, यार ये लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं ना, इसीलिए मुझे कॉल आ रहा है, सो दैट वो आपका रिटेनर में आपका कंटिन्यू होते रहता है। ठीक है, ओके ठीक है, अभी तक तो समझ में आ गया। फिर बाद में हम जाते हैं आगे। ओके, ट्रिक्स एंड टिप्स। ओके, तो यहाँ पे थोड़े ट्रिक्स एंड टिप्स भी हमें देखने होते, थोड़ा आगे थोड़ा और चीज़ें देख लेते हैं। फिर अभी यहाँ पे मैंने आपको जिम का बता दिया। ओके, एक आपको मैंने जिम के मैंने रीजर्स बताया। अभी यहाँ पे आपको मैं एक केक शॉप का एग्जाम्पल बताता हूँ, और वो केक शॉप का एग्जाम्पल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि इट इज़ नॉट समथिंग की जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, बहुत रिमोट जगह पे ये पर्टिकुलर लोकेशन है। इनफैक्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ मैं, शायद से यूपी में है। ओके, एक छोटा सा एक केक का शॉप है। तो आप बोलोगे यार गाजियाबाद के केक के शॉप के बारे में मुझे आप क्यों बता रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे बिजनेस बताओ ना जो कि बहुत हैपनिंग है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रहे हैं। सो पॉइंट बिंग, लेकिन यार कोई भी लोकेशन हो, वो छोटा भी लोकेशन हो या फिर बड़ा भी लोकेशन हो, गूगल का इतना पेनिट्रेशन हुआ है ना इंडिया में, इतना लोग, वो जियो आने के बाद में इतना मोबाइल सेवी हो गया है कि जो भी चीज़, छोटा मोटा चीज़ भी ढूंढना होता है ना, लोग उसके लिए मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, सर्च का यूज़ कर रहे हैं। भले ही आप नहीं करते रहोगे, ओके, यू मे बी एन एक्सेप्शनल केस, मे बी आप वो चीज़ सर्च नहीं कर रहे, बट देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो कि कुछ भी चीज़ चाहिए ना, उसके लिए गूगल का यूज़ कर रहे हैं। और एक गाजियाबाद के एक छोटे से केक शॉप के लिए सर्चेस हो रहे हैं ना, तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आप ये मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो, मेट्रो लोकेशन में रह रहे हो, तो वहाँ पे लोग सर्च करते ही होंगे। ओके, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 का डेटा है। तो ज़्यादा करके इनका दिसंबर में बहुत ज़्यादा पीक आउट हुआ था, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई थी, 196 प्रोफाइल इंट्रैक्शन हुए थे। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14,000 से ज़्यादा लोगों ने उनको व्यू किया था, उनके बिजनेस को। गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अभी तो इसके पहले आपने अंधेरी लोकेशन देखा, जो कि मुंबई का सबसे हैपनिंग जगह है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे लोगों ने व्यू किया था। एक गाजियाबाद के केक शॉप की बात कर रहा हूँ। ओके, एंड देन यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये चीज़ भी आपको देखने होती है कि कितने सारे, ये भी आपको डेटा मिलता है गूगल माई बिजनेस में कि कौन कौन से क्वेरीज हो वो लोग वहाँ पे डाल रहे हैं। जैसे कि वी वर लाइक सरप्राइज, ओके, कि हमें पता ही नहीं था, हमें तो ऐसा लगता था केक बोलेगा तो यार कौन सा केक होता है, वो चॉकलेट केक होता है या फिर ब्लैक फॉरेस्ट होता है या फिर और भी होता है। बट देन वी वर लाइक ये रेड वेलवेट केक भी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे पसंद किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखो रेड वेलवेट केक को 2,000 से ज़्यादा लोगों ने, यानी लोग सर्च कर रहे हैं। ओके, कहाँ पे मिलेगा मुझे रेड वेलवेट केक। ओके, एंड देन देयर इज लाइक केक दुकान करके हिंदी में टाइप कर रहे लोग। ओके, यू विल बी लाइक नहीं नहीं, सर्च तो इंग्लिश में ही करते हैं, मैं तो करता हूँ इंग्लिश में, तो यार सब लोग इंग्लिश में, बट ऐसा नहीं है।
वहाँ के लोकल लोग हिंदी में टाइप करके सर्च कर रहे थे और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ है ना जो कि आपको लाइक क्या होता है ना, अरे यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ओके, तो ये चीज़ आपको पता चलता था, ये सब चीज़ आपको देखनी होती है। देन कोई कोई लोग कर रहा है केक शॉप नियर मी, जो कि सबसे परफेक्ट कीवर्ड था, बट बाकी भी कर रहे थे। तो हमने क्या किया ना, ये सब कीवर्ड्स है ना हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, या फिर हमारे रिव्यूज़ में हम लोग ने उस तरह से मैनिपुलेट इस तरह से की है कि यार जब भी कोई सर्च करता था रेड वेलवेट केक, तब क्या होता था, वो बंदा हमारे लिस्टिंग पे आता था, वहाँ से वो कॉल करके कन्वर्जन होता था कि यार रेड वेलवेट केक मैंने सर्च किया था आपके पास में, हाँ है ना यार, हम लोग बैठे ही आपको रेड वेलवेट केक देने के लिए। तो वो जो क्लाइंट था, गाजियाबाद का क्लाइंट, हमें कॉल करके बोल रहा है ये पहले महीने में आपने जो चीज़ किया ना, सेम चीज़ है, मुझे आगे के 6 महीने के लिए करो, मैं आपको 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। ओके, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये कितनी बड़ी बात होती है। ओके, अगर आप सही से करोगे ना चीज़, तो लोग आपके पास में आते ही रहेंगे और आपका बिजनेस भी फ्लरिश होगा। अगर आपको ये चीज़ के बारे में आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं डाल रहे हो, अरे क्या होता है गूगल माई बिजनेस, मैंने वो 5 मिनट का वीडियो देखा था यूट्यूब में, हाँ कुछ करना होता है, ठीक है कर लेंगे, अगर आपका ये एटीट्यूड है ना, यू विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ओके, वही जो विनोद वर्सेस बीरबल है ना, उसमें मैं ये चीज़ कवर अप करता हूँ। बट एनीवे, और थोड़ा स्टैट्स देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिजनेस प्रोफाइल इंटरेक्शन कितने हुए थे। तो जैसे आप देख सकते हो कि अब जो दिसंबर का टाइम होता है ना, उस टाइम में ये सब ऑप्टिमाइजेशन आपको करना होता है, तो वो आप चीज़ देख सकते हो। वो किया था ये कुछ ये जिम का है, जैसे कि मैंने आपको ये जिम, मैंने आप अंधेरी का जिम बताया ना, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि उनको किस तरह के क्वेरीज आ रहे हैं। तो ये तो 2 and 3 उनके ब्रांड का नाम था, इसलिए मैंने ये कर दिया। बट देन वो टाइम पे कितने क्वेरीज थे, जिम नियर में कितने लोग सर्च कर रहे हैं। ओके, जिम नियर में डाल के कितने लोग आए, यानी 1400 लोग जिम नियर में डाल के उन्होंने व्यू किया हमारे लिस्टिंग को। ओके, फिर बाद में और भी क्या टाइप करते हैं, जिम इन अंधेरी वेस्ट, तो अंधेरी वेस्ट टाइप किया था। तो ये सब क्वेरीज हमने मैनिपुलेट करके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, ताकि जब भी कोई सर्च करेगा तो उसको हमारा रैंकिंग मिल जाए। ओके, तो ये सब चीज़ें करनी होती है। देन आप देख सकते हो कि जिम वाले का है कि कितना इंट्रैक्शंस हुए, 267 इंट्रैक्शंस हुए हैं वहाँ पे। देन ये किस चीज़ का है, हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द रेस्टोरेंट दैट वी आर हैंडलिंग इन वसई। ओके, तो उसका ये गूगल माई बिजनेस का रिपोर्ट है कि 13,000 लोगों ने ओके उसका बिजनेस व्यू किया। 13,000 लोग बहुत बड़ी मायने रखता है। ओके, ऐसे लोग जो कि सर्च कर रहे हैं, ओके आपके बिजनेस से रिलेटेड क्वेरीज सर्च कर रहे हैं। क्या क्या सर्च कर रहे हैं, रेस्टोरेंट नियर मी करके कुछ उन्होंने इतना डाला है, किसी को कॉकटेल सर्च करना है कहाँ पे मिलेगा, तो वो पर्टिकुलर इसमें इतने लोगों ने सर्च किया है। एंड देयर आर अदर क्वेरीज में भी वो ब्रांड का नाम यहाँ पे था। तो इस तरह से गूगल सर्च से कितने लोग आए हैं, मैप से कितने लोग आए, यानी 10,000 लोग गूगल सर्च से आए। ओके, फिर बाद में करीबन 2,000 लोग मैप से सर्च कर रहे हैं। फिर जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इस तरह से ये पूरे स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ये चीज़ कैसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको इतना बड़ा बोल दिया, मैंने ज्ञान तो बता दिया, बट देन ज्ञान विल नॉट गिव यू एनी बिजनेस। ओके, बिजनेस तभी आएगा जब मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ ना, उससे आप एक्शंस लोगे। तो एक्शंस लेने का भी एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम अगर आप नहीं फॉलो करोगे ना, तो मैंने जितना भी बोला ना, इट विल लाइक बहुत अच्छा था, बहुत सब चीज़ें कवर अप कर दी है, सब कुछ है, सब कुछ समझ में आ गया, बट देन यही चीज़ मैं आपको 10 दिन के बाद में बोलूँगा ना, विल बी लाइक अरे हाँ थोड़ा बहुत याद आ रहा है, देन मैंने एक उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, देन इट विल बी ऑफ नो यूज़। तो वो इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है ना, तो उसका एक हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाया। तो दिस इज समथिंग दैट वी फॉलो इन ओपन एजेंसी, इन सोशल बिरबल, तो जिससे रिजल्ट आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हम क्या क्या चीज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम जो भी स्ट्रैटेजिस्ट होंगे या फिर जो भी बंदा गूगल माई बिजनेस करेंगे ना, उसको ये पहले कि ये 2 वीडियोस हम लोग बोलते हैं कि यार देख लो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम जो हम अभी ट्रेनिंग दिया। उसके बाद ये 2 वीडियोस है विच आई शेयर विथ यू। अगर आप मुझे बस कर ले सकते हो, या फिर मैं आपकी चैट बॉक्स में आपको भेज देता हूँ, यू कैन सिंपली वॉच देम एनी टाइम लाइक फील लाइक। ओके, उसका बुकमार्क करके रख देना। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या होता है, तो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस कुछ इस तरह से होता है। तो डे 1 में क्या करना है, ओके आपको एक स्टैटिस्टिक्स बनाना है। ओके, स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ करना है, तो ये कैनवा का एक हम लोग ने
एक स्टैटिस्टिक्स का एक फॉर्मेट बनाया, तो वो क्लिक करके वो स्टैटिस्टिक्स आपको बनना पड़ता है। फिर बाद में डे 2 में क्या करना पड़ता है, सेंड इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। यूजुअली हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखते हैं क्लाइंट के साथ में, तो ये स्टैटिस्टिक्स हम लोग सेकेंड डे पे हम लोग भेजते हैं। एंड देन हम लोग और क्या चीज़ करते हैं कि यार उसको किस भेजने के बाद में क्या बोलना है, देन थर्ड डे पे क्या करते हैं, फोर्थ डे में क्या करते हैं। तो हर चीज़ का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, जिससे क्या होता है ना, आप चीज़ों को मेजर कर सकते हो। ओके, तो मे बी 11 डे तक आपको क्या चीज़ें करनी है, आपको 8 डे में क्या करना है, ये सब चीज़ें प्रॉपर सीक्वेंस के साथ में हमें फॉलो अप करना पड़ता है। ओके, अगर क्लाइंट को हमें कुछ देना है, जैसे कि हम लोगों ने, मैंने बोला कि रिव्यूज़, ये टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं कवर करूँगा कि रिव्यूज़ बढ़ाना है तो किस तरह के आपको उनको क्रिएटिव्स बना के देना है ताकि उसके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ दें। तो ये सब चीज़ें होती है। तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, ट्रेलो बोर्ड मेंटेन रखता है। तो इस तरह से बेसिकली हमारा एक एग्जीक्यूशन सीक्वेंस होता है। ओके, तो इन केस लाइक अगर आपको ये चीज़ें चाहिए है तो यू कैन जस्ट सिंपली बज मी, आई विल शेयर दीज थिंग्स विथ यू। ओके, सो आपको वो भी चीज़ मिल जाएगा। देन उसके साथ में और क्या क्या चीज़ें होती है, देन रिव्यूज़ होते हैं। ओके, रिव्यूज़ क्रिएट करने होते हैं हमें। एंड देन यू लाइक, अरे रिव्यूज़ तो कस्टमर देते हैं, हम लोग क्रिएट क्यों करते हैं? रिव्यूज़ इसलिए हम लोग क्रिएट करते हैं क्योंकि कस्टमर तो कुछ भी देगा, कस्टमर वहाँ पे जाके 5 स्टार देगा और वो कुछ भी लिखेगा, बट देन वो चीज़ें आपके ब्रांड तक पहुंचने के लिए लोगों को मदद नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम गोइंग टू अ जिम, ओके, और मैं सिर्फ वहाँ पे 5 स्टार दे रहा हूँ और मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ कि बेस्ट जिम, सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ, बेस्ट जिम, तो क्या होगा उससे? उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं वहाँ उसको 5 स्टार दिया हूँ और मैं वहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, इफ़ यू आर सर्चिंग जिम नियर मी, ओके, और इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर बेस्ट जिम इन दैट पर्टिकुलर एरिया, देन दिस इज इट। ओके, आपको यहीं पे आना है। सो अगर मैं ऐसा चीज लिख रहा हूँ ना वहाँ पे, तो गूगल है ना, जब भी हम लोग सर्च करते हैं बेस्ट जिम इन से ऐसे वैसे ही, ओके, और मैंने वहाँ पे रिव्यूज में अपने कोई कस्टमर ने वहाँ पे लिखा है कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यार इफ यू आर लुकिंग फॉर जिम नियर मी और जिम बेस्ट जिम इन वैसे, देन दिस इज द बेस्ट जिम। ओके, तो वो गूगल देखता है कि यार रिव्यूज में वो सेम पर्टिकुलर कंटेंट है जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो रैंकिंग में ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स में भी आता है। तो वो चीज़ें है, फिर वो अपने कस्टमर से कैसे सबमिट करने के लेना है, तो वो भी एक अलग ट्रिक होता है। गूगल में बिजनेस का डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखना है, कीवर्ड किस तरह से स्टफ करना है, तो ये सब चीज़ का हम लोगों ने प्रॉपर एक सिस्टम बना के रखा है, एक नॉलेज बेस बना के रखा है, तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं और उससे आपका सही मायने में रैंकिंग बढ़ता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। ओके, यहाँ पे क्या होता है ना, विनोद इज समवन जो कि यार करता है, ओके, करने के लिए चीज़ें करता है, एंड देन जस्ट ही इज लाइक नेम सेक। क्योंकि जैसे मैंने पहले में बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन में बताता हूँ, आजकल हर एक बंदा बोलता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग में आपका रैंकिंग लेके आऊँगा, सब कुछ है, बट एक्चुअली क्या वो एक्चुअली में रैंकिंग दे पा रहा है अपने क्लाइंट को, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके, और एक होता है बिरबल, जो क्या करता है ना, जो भी वही सब चीज़ें बोलता है जो कि विनोद बोलता है, बट उसमें डिफरेंस क्या होता है, वो सच में रैंकिंग देता है लोगों को। ओके, तो ये दोनों चीज़ में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको एग्जीक्यूट करेंगे, बोलेंगे मैं गूगल में बिजनेस कर रहा हूँ, बट अगर आप कुछ भी टाइप करोगे ना उसके बिजनेस रिलेटेड, तो उनका रैंकिंग आता ही नहीं। इट इज़ बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द राइट सिक्वेंस। ओके, जैसे मैंने बताया कि डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है। दे आर लाइक, अरे यार हम लोग ने कुछ वीडियो देखा था, उसमें तो यही बोला था, इतना ही कर सकते, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। ओके, इफ़ यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ माइंड सेट ना, तो यार जीएमबी आप मत ही करो, क्योंकि क्लाइंट खाली फुकट का सिर्फ वो 1-2 महीने के बाद में बोलेगा यार आपके वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बट अगर जो वही चीज़ अगर बिरबल करेगा ना विद द राइट सिक्वेंस, राइट मेथोडोलॉजीज, तो क्लाइंट खुद ही बोलेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यार 1 महीना आपने कर दिया ना, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ले लो। ओके, क्लाइंट खुद से बोलेगा, और ऐसे क्लाइंट होते हैं। ओके, एक गाजियाबाद का एक छोटा केक शॉप अगर बोल सकता है ना, तो कोई भी यहाँ पे आपका मेट्रो सिटी में रह रहे हो, ओके, तो आपको वो हाँ ही बोलेगा और आपका बिजनेस वैसे ही फ्लरिश होगा अगर आपको ये अच्छे से आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है एक विनोद के एग्जीक्यूशन में और एक बिरबल के एग्जीक्यूशन में। ठीक है, एंड देन आई बिलीव मैंने ज़्यादा से ज़्यादा तो चीज़ें कवर अप की है, बट फिर भी मैं थोड़ी बहुत ट्रिक्स एंड टिप्स भी कवर अप कर लेता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये होती है, ये चीज़ आपके पास में होना चाहिए, आपके जीएमबी के गोल्स होने चाहिए। ओके, अभी कल से अगर मैंने बोल दिया कि यार चलो इसका हमें जीएमबी करना है, तो आपके पास में कुछ सर्टन गोल्स होने चाहिए। और एक जैसे होता है ना कि जब भी एक घोड़ा रेस करता है, तो उसके क्या बोलते हैं ना उसको, कि वह उसको साइड में वो लगाते, क्या बोलता है, आई एम नॉट गेटिंग दैट राइट वर्ड। ओके, कि यार तुझे भागना ऐसे ही भागना है, तुझे यहाँ वहाँ पे नहीं देखना है, तुझे एक
एक यही राह पे जाना है। तो यहाँ पे आपको ना सबसे पहले तो वो डिफाइन करना होता है। तो ये जीएमबी गोल्स मैंने डिफाइन करके रखे हैं। तो हर एक क्लाइंट के लिए ना हम लोग ऐसे जीएमबी गोल्स डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने गोल्स क्या रखे हैं कि हम लोग मंथ में, यहाँ पे देखो, मंथ में 10 रिव्यूज हम लोग बढ़ा के देंगे, 10 लिंक बिल्डिंग करेंगे एंड 10 फोटो अपलोड करेंगे। कम से कम ये तो करेंगे एक महीने में एक ब्रांड के लिए। तो ये जब गोल लेके आप चलते हो ना, तब आपका रैंकिंग बढ़ जाता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीक 1 में अगर सपोज जैसे मैंने 10 रखा है, ओके, महीने में मेरे 10 गोल्स है। इट डिपेंड्स, ओके, अगर आपका अच्छा खासा रैंक हो रहा है तो आप गोल्स कम कर दो। अगर आपके कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको ये नंबर थोड़े आपको बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, आपके हैंडल के हिसाब से, आपके कंप्यूटर के हिसाब से आप ये गोल्स चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको उस हिसाब से चेंजेस करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो, अगर मैंने बोला है कि मुझे 10 रिव्यूज़ हम चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूँगा, वीक 1 में मेरे 2 रिव्यूज़ तो होने ही चाहिए। मैं 2 कस्टमर को कैसे तो कैसे कन्विंस करके उनसे रिव्यूज़ लेना ही चाहिए। ओके, तो ये मेरा होगा। तो फिर बाद में जब वीक 1 का एंड होगा तो हम लोग वो रिव्यू करते हैं, क्या सच में आपने 2 रिव्यूज़ उनके लिए बना के दिए, तो हो गए तो यार चलो यार ग्रीन हो गया। ओके, अगर नहीं हुआ तो जैसे कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक इसमें ये पर्टिकुलर इसने रिव्यूज़ इसमें हो गए, बराबर बन के हो गए, तो हर चीज़ ग्रीन में आपको दिख जाएगा। ओके, 5 वीक थे वो पर्टिकुलर मंथ में, तो यार ग्रीन है, तो सब बढ़िया चंगा चल रहा है। ओके, फिर बाद में दूसरा चीज़ हो गया लिंक बिल्डिंग। अभी ये लिंक बिल्डिंग क्या है, जैसे मैंने बताया कि आपको अलग अलग वेबसाइट में आपकी लिस्टिंग डालने होते हैं। इट मे बी लाइक जस्ट डायल हो सकता है, या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई एक ऐसे वेबसाइट्स हो सकते हैं जहाँ पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। ओके, जैसे नियर बाय हो गया या फिर येलो पेजेस हो गया, तो ऐसे लिस्टिंग साइट्स होते हैं। ओके, आपके कॉम्पिटिटर को देखना पड़ता है कि वो कहाँ कहाँ पे लिस्ट कर रहा है, और उसके हिसाब से आपको भी लिस्ट करना होता है। तो उसके लिए भी हम लोग गोल रखते हैं कि हर वीक में 2 लोगों का एटलीस्ट आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वीक 2 में एक भी नहीं हुआ, 0 हो गया। ओके, फिर बाद में ये वीक 1 में 1 हो गया, तो यार जिसमें नहीं हुआ ना तो वो रेड हो जाएगा। फिर बाद में सपोज ये येलो वाला है, ओके, येलो वाला मतलब आपने पार्शियली कंप्लीट किया है, तो उसके लिए येलो हो गया। तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ है ना, उसमें मैंने जानबूझ के कुछ 2 मिस्टेक्स करके रखी है। कैन यू गाइज आइडेंटिफाई कि बाबा इसमें मैंने 2 गलतियाँ क्या कर दी है। ओके, यू गाइज नीड टू आइडेंटिफाई, कुछ तो मैंने गलती की है इसके अंदर, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। कैन यू गाइज आइडेंटिफाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एज वेल। ओके, साक्षी, रोहिणी, या फिर ऑल ऑफ यू गाइज हु आर लाइक प्रेजेंट, 11 लोग हैं हमारे साथ में। मैं फिर से वो स्क्रीनशॉट बता देता हूँ आपको, कहाँ पे गया जीएमबी गोल्स। इसमें क्या गलती लग रहा है, रेड बोलेगा तो कुछ भी नहीं हुआ, एंड येलो बोलेगा तो एटलीस्ट पार्शियली कंप्लीट हुआ है, एंड गोल अचीव हुआ, देन इट्स लाइक ग्रीन। कैन यू आइडेंटिफाई, या फिर मैं और जूम करूँ। एक लिंक बिल्डिंग में वीक 3 में 1 लिखा है। राइट, ये कौन सा वाला 1 बोल रहा है, ये वाला क्या, ये वाला ऊपर का, हाँ ये वाला। तो ये हाँ, वो 1 है, वाला। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, येलो होना चाहिए, रेड होना चाहिए, या फिर येलो होना चाहिए वहां पे। हाँ, तो ये येलो होना यहाँ चाहिए। पे येलो होना चाहिए। हाँ, और एक दूसरा वाला बताओ, चलो एक तो आपने पकड़ लिया, दूसरा वाला बताओ। वही जो वीक 5 में 2 लिखा हुआ है। अच्छा, ग्रेट, नाइस। तो यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, वो 1 चाहिए। राइट। तो एक जो स्ट्रैटेजिस्ट होता है ना, वो देख के पता जाएगा कि यार प्रॉपर आप गोल कर ही रहे हो, या फिर ऐसे ही कुछ भी करने के लिए कर रहे हो कुछ भी, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं कि एंड ऑफ द मंथ, हाँ मैंने किया तो क्या किया। यहाँ पे अगर गोल्स रहेंगे ना तो यू कैन मेजर दोस्त, हाँ आपने सही किया, ठीक है, ये आपने रिव्यूज भी बिल्ड किया, आपने लिंक भी बिल्ड किया, सब कुछ ग्रीन दिख रहा है ना, तो यार तू सच्चा स्ट्रैटेजिस्ट है। या तो तू बिलियनर है तो तू विनोद है, तू सिर्फ एक्सक्यूज देगा, अरे मैंने लिंक बिल्डिंग करने गया था लेकिन मुझे मिला ही नहीं, हुआ ही नहीं। अरे आपके कॉम्पिटिटर लोग लिंक बिल्ड करके ऊपर जा रहे हो और यू आर गिविंग एक्सक्यूज, तो आप क्लाइंट को कहाँ पे लेके जाओगे, नॉट एबल टू डू गिव एनी जस्टिस टू द वर्क, राइट। तो ये चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको करनी होती है। सो एनीवे, अभी अपना क्वेश्चन आंसर का राउंड हम लोग रख लेते हैं, and then if there is any question we'll take that, and then after this, okay, ये तो अपना जेनरिक वाला था जो कि जैसे कि हम ओपन एजेंसी एक मैनेज करते हैं टीम ऑसम, ये जो पूरा ट्रेनिंग था वो उनके लिए था।
in case you are you want to know more about it, you can buzz me, and then we can discuss more about how this open agency thing works and everything. But ये जो ट्रेनिंग था वो उनके लिए था। तो कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें भी है जो मैं उनके प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक बोलना चाहूँगा, जो कभी होगा ये ट्रेनिंग सेशन ख़त्म होने के बाद में, ये जो जेनरिक है जिसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसके बाद में हम एक अलग से ट्रेनिंग सेशन करेंगे जिसमें एक्चुअल क्लाइंट का लॉगिन करके और वो सब चीज़ें हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बट बिकॉज मैंने सोचा कि यार चलो मैं आपको दे ही रहा हूँ तो इसको थोड़ा और जेनरिक भी करूँगा तो कि और लोगों को नॉलेज मिल सके, तो ये वाला सेक्शन उसके लिए था। ओके ठीक है, तो विल टेक द क्वेश्चंस। ओके, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, नाउ इज द टाइम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड देन वी कैन टेक दोस क्वेश्चन एंड देन विल एंड दिस थिंग, एंड देन फिर बाद में वो प्राइवेट वाला अपना ओपन एजेंसी के लिए होगा। एनी क्वेश्चन लाइक रोहिणी जी, हार्दिक जी, कार्तिक, कुलदीप, दिस इज द टाइम यार, अनम्यूट कर लो। नहीं मुझे तो समझा। सब क्लियर है? हाँ सर, सब क्लियर है एकदम एकदम क्लियर है। क्लियर सब है, बट देन अभी जब भी काम करेंगे तभी पता चलेगा क्या डाउट्स हाँ आएंगे। एग्जैक्टली। हाँ, राइट। तो उसके लिए तो वो जो एग्जैक्टली जो चीज़ है तो वो तो डेली मीटिंग में हम लोग कवर ही करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स जो भी होंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, वी कैन हैव लाइक 2 मिनट और रुक जाते हैं। और रमेश जी, Hi. हाय। No questions from my side. Again, implement करना पड़ेगा तभी questions तभी पता चल पाएगा। ठीक है। सो आई बिलीव यहाँ पे ये सब चीज़ ये कर लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं ये वाला ट्रेनिंग सेशन। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग हियर अटेंडिंग दिस सेशन। कुछ भी आपको क्वेरीज है तो यू कैन कनेक्ट टू मी, और आप सोशल मीडिया एवेंजर ग्रुप में हो तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो आई विल शेयर द लिंक। अगर आपको लिंक पता नहीं है तो यू कैन सिंपली गो टू social birbal page on Instagram, and from there on you can join social media avenger group, जो कि एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहाँ पे हम ये जो मीटिंग होते हैं, जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, सबसे पहले आपको वहाँ पे हम लोग इंटीमेट करते हैं कि आज है या नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। यू कैन सिंपली, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सिंपली विजिट सोशल बिरबल ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे आपको बायो में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो कम्युनिटी। ठीक है, थैंक यू ऑल।